جب دین اسلام پر اپنے عمل نہیں کرتے تو پھر غیروں کو موقع ملتا ہے. دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. کیا بات. یہ کب ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کی مکان کی، ہمارے گھر کی دیوار گر جائے تو آس پڑوس والے تو راستہ بنا لیں گے. تم اپنے گھر کی دیوار گرنے کیوں دیے؟ اسی لیے میرے عزیزو، دین اسلام پر آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں، حفاظت کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جلسے کر کے، جلوس کر کے، نعرے لگا کر نہیں، پہلے اپنی زندگی میں عمل کر کے. سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کر آپ جھانک کر دیکھو ہمارے بچوں کو قرآن کتنا آتا ہے. ان کو تو 3 منٹ کے کتنے گانے یاد ہو گئے. میرے مصطفیٰ کے الفاظ، میرے مصطفیٰ کی حدیثیں کتنی یاد ہیں. لوگ دوسروں کے ڈائلاگ یاد کر لیتے ہیں، اپنے نبی کے فرمان کیوں نہیں یاد ہیں؟ جبکہ یہ دنیا کے گانے، جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں جو گانے سنتا ہے اس کے دل میں منافقت آتی ہے. السلام علیکم. مفتی سلمان اظہری صاحب پورنیہ بہار سے جلسہ میں بہترین بیان کیے ہیں. پہلے اس بیان کو سنیں، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں. کان کھول کر کے سن لو. سارے دجال مل کر کے بیٹھ کر کے اپنی طاقت کا استعمال کریں تب بھی ہمیں نہیں مٹایا جا سکتا. کوئی نہیں مٹا سکتا. اقبال نے کہا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اے نوجوانوں، میں یہ خطاب صرف اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تم فخر کرو کہ جس دین پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ دین ہے. تم کسی چور قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ سر جھکا کر کے جیو گے. تم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ اپنی ٹوپیاں چھپا کر داڑیاں چھلا کر کے گھومو گے. ارے سینہ تان کر کے زمین پر چلو کہ تمہارا آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین کوئی اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. آپ اس نبی کے پیروکار ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں جس کو اپنے سارے غیروں نے بھی سچا اور امین کہا ہے. سبحان اللہ. تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ آج دین اسلام پر اگر تم کو خود شک پیدا ہوا تو پھر تمہارا کوئی علاج کیا کرے؟ سب سے پہلے یقین کی دولت پیدا کرو کہ جس دین پر میں قائم ہوں وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا. ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کفار و مشرکین نے قید کر کے سولی پر چڑھایا تھا. جانتے ہو ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد ان کے کان کاٹے، ناک کاٹے، ہونٹ کاٹے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری حضرت خبیب ابن عدی. اور اس کے بعد ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے، صلی اللہ علیہ وسلم. پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا ہوتا اور تو آرام کر رہا ہوتا. جانتے ہو اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ انہیں یقین کتنا تھا اپنے دین پر، اپنے دین اسلام کے سچے ہونے پر. انہوں نے پہلے تو یہ کہا ظالموں خبردار، تم رسول اللہ کو میری جگہ ہونے کی بات کر رہے ہو. قسم رب ذوالجلال کی میرے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں میں گوارا کروں گا، میرے نبی پاک کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں ہے. اور دوسری بات، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں قتل ہو جا رہا ہوں، مر جاؤں گا، مجھے اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں، اس لیے کہ تم قتل کر کے جس جانب بھی مجھے پھینکو گے میں دین اسلام پر دنیا سے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. سب سے بہترین دین پر میں مر رہا ہوں، یہ مجھے فخر ہے، مجھے گرو ہے. آج نوجوانوں کے اندر یہ فخر چاہیے ہمیں کہ تم دین اسلام سے وابستہ ہو. جب تمہارا یقین بڑھ جائے گا اللہ کی مدد آئے گی. تمہارا یقین بڑھ جائے کتے بھونکنا بھی بند کر دیں گے. آپ کا یقین پائے تکمیل تک پہنچے.
अगर तसलजुल तुम्हारे अंदर है, डुलमुल यकीन के साथ जी रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है लोग तुम्हें तरह तरह के शोशे छोड़कर शक और शुबा में पैदा कर देंगे। आज जिन हालात से हम दुचार हैं, क्यों दीन इस्लाम की इस अजमत पर लोग उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको अंदाजा है? तुम्हारा खुद का अमल जरूरी है। सच बात बता। आप अभी अब मैं नारा लगाऊं इस्लाम जिंदाबाद, तो सारे जोश से लगाएंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इस्लाम से मोहब्बत है। सड़कों पर आओगे तो बड़े नारे हैं, जुलूस में जाओगे तो भी नारे हैं इस्लाम जिंदाबाद। लेकिन ये इस्लाम जिंदाबाद शादियों में कहां है? तुम्हारे घर की औरतों में कहां है? वाह 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 वाह, बेटियों पर इस्लाम क्यों नहीं नजर आता? सच बात पैगाम, है। वाह। बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं नजर आता? जब तुम्हारे घर में इस्लाम जिंदाबाद नहीं है तो सड़कों पर नारा लगा करके क्या कोई फायदा? फायदा नहीं सर। सबसे पहली बात, अपने घर से इस्लाम को जिंदा बेशक, करो। अपने घर से इस्लाम को जिस जिंदा दीन से तुम वाबस्ता हो, दूसरों पर नाफिज करने की बजाय, दूसरों को जवाब देने की बजाय पहले अपने घरों में इस्लाम जिंदा करो। आज तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी औरतें इस्लाम की पाबंद नहीं है, बेपर्दा बाहर उठती हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे तुम्हारी इसमें सठियाया हुआ बुढ़ा अगर हमारी बेटी के हिजाब पर हाथ लगाता है, वजह क्या है? अरे वो तो सटिया गया है, सच बात है। रिटायर्ड हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है जब बुढ़ापा ज्यादा हो जाता है तो आदमी पागल हरकतें करने लगता है। सच बात। लेकिन लोग इसको पागल समझ करके ना छोड़ दें, क्योंकि गलियों में बहुत सारे लोग पागल होते हैं तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। खाली रहें तो दूसरों को तकलीफ देते रहेंगे। तुम्हारी बच्चियां और तुम्हारी बहनें अगर उनके पर्दे और उनके हिजाब तक हाथ आता है तो तुम वावेला मचाओगे बाद में, क्या रे बेटियों के पर्दे पर हाथ आ गया, उनके हिजाब पर उंगली उठ गई। लेकिन जब तुम्हारे घर में बात आए तो तुम खुद नंगा घुमाना चाह रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है। 3 मर्तबा मेरे आका ने फरमाया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है दयूस? हुजूर फरमाते हैं दयूस ऐसा शख्स है माशा, दयूस ऐसा शख्स है जिसकी बीवी बेपर्दा बाहर घूमती हो। उस मर्द के बारे में हुजूर फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। जिसकी औरत बेपर्दा आवारा घूमती हो उसका मर्द जहन्नम में जाएगा। तो फिर औरत का अजाब क्या है? उसका अंजाम क्या होगा? मुसलमानों, दीन इस्लाम महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा। वो हमारे जिम्मे नहीं दिया गया है, अल्लाह ताला इसका हिफाजत करने वाला है। सुभान अल्लाह। सुबह क़यामत तक रब तबारक व ताला हाफिज है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस दीन इस्लाम को अगर सच्चा समझते हो तो सबसे पहले इस पर अमल करके दिखाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो दीन इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। तुम्हारा चेहरा बताए, तुम्हारा लिबास बताए। आज क्या बात है, तुम बाहर चलते हुए हो, तुमसे नाम पूछ करके मालूम करना पड़ता है कौन सी जात वाला है, कौन से दीन वाला है, कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। तुम्हें नाम पूछने के बाद भी कुछ लोगों को पता नहीं चलता। नाम पूछा गया लड़के का क्या है, कहा राजा नाम है, बबलू नाम है, बाबू नाम है, पता ही नहीं चला इधर का है कि उधर का है। फिर बाप का नाम पूछना पड़ा, बाप से भी नहीं पता चला, दादा का पूछना पड़ा। अरे तुम्हारी पहचान के लिए इतना लंबा शजरा क्यों पूछना पड़े? तुम अपना हुलिया ऐसा बनाओ कि चलते फिरते लोग देख कर कहें ये मदीने वाले का आशिक दिखता है। चलते फिरते तुम्हें दुनिया पहचान ले, इसका नाम पूछने की जरूरत नहीं, इसकी शक्ल बताती है ये मदीने की गलियों से आया हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज नौजवानों को शर्म है, आर है,
5 ग्राम की टोपी नहीं पहन सकते, 5 किलो की जीन्स पहनकर फख्र करते हैं। इन्हें शर्म है, क्यों? दाढ़ी जल्दी से निकाल करके। हमारे पास एक ऑटो वाले आए थे मुंबई में, कहा कि हजरत मसलहत है, हालात बहुत खराब हैं, मैं साफ कर देता हूं, लोग पता नहीं क्या समझते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद गारंटी है तुम्हें, लिख करके दे सकते हो, दाढ़ी निकाल कर गटर में डालने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। सच बात है। उन्होंने कहा नहीं, इसकी तो कोई इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। कहा जब तुझे पता है रखने के बाद भी मौत आएगी, निकालने के बाद भी मौत आएगी, तो शर्म कर, निकाल कर दुनिया से जलील होकर क्यों जाएगा? जिस वक्त भी मरना है मेरे आका की सुन्नत पर दुनिया से जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे से तुम्हें क्या तकलीफ है? दुनिया अगर दीन इस्लाम पर चलने की वजह से तुम्हें तानो तशनी करती है तो मेरे अजीजों, ये आपके लिए डर करके अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। सुनो, अगर तुमने दीन इस्लाम पर अमल किया और लोग ताना देने लगे तो फरमाया गया है कि उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाए। 100 शहीदों का सवाब। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अजरु मिअती शहीदिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा जमाना आ गया कि लोग हुजूर की सुन्नतें भूल चुके हों। उस जमाने में कोई नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करता है, हुजूर फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। बेशक, सुभान। नौजवानों, डर और खौफ आता ही जाएगा जितना तुम भागते जाओगे मेरे नबी से, उनके अखलाक से जितनी दूर जाओगे मारे ही जाओगे। हमें तो फख्र है इस बात पर, जिस दिन भी मारे जाएंगे मेरे नबी के गुलाम कहकर मारे जाएंगे। बेशक, सुभान। डर किस बात का है? और इसीलिए आप सबको इस बात की तैयारी में रहना चाहिए कि दुनिया से जाने का वक्त आए तो जलीलों में ना उठाया जाए। अल्लाह अल्लाह। ऐसी हालत ना रहे कि लोग जनाजा पकड़ने में भी शर्म महसूस करें। ऐसी अपनी हालत बना करके रखो कि आखिरी वक्त आए तो लोग देखने को तरस जाएं। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए। तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जितनी वफा करोगे उतनी इज्जत के साथ अल्लाह ताला जिंदगी अता करता है। सुभान अल्लाह, सच बात। उतनी ज्यादा इज्जत के साथ जिंदगियां मिलती हैं। ये तो दुनिया की बात है। थोड़ी बहुत तकलीफ अगर आ भी गई, आखिरत की इज्जत अल्लाह ताला के यहाँ है तुम्हारी। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तुम, तो हम तेरे हैं, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे। बेशक। तुम जितना भागोगे उतनी इज्जत तुमसे दूर भागेगी। तुम सोचते हो बहुत मॉडर्न बनने में इज्जत है, पॉश लोगों के साथ जीने में इज्जत है, वो तो हम देख रहे हैं। आज ये हजारों लाखों का मजमा हमें क्यों इज्जत देता है? हमें क्यों इज्जत देता है? हम कौन सी पार्लियामेंट से आए हुए लोग हैं? यहां उलमा को मिंबर पर क्यों बिठाया गया है? वजह सिर्फ यह है कि रसूलुल्लाह की हदीस से या उनके दीन से निस्बत रखने वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत से जिनकी निस्बत है उनको दुनिया में यह इज्जत है, आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ और बड़ी इज्जत है। ऐ नौजवानों, इसीलिए आला हजरत की बात सुनो। आपने क्या कहा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दीन इस्लाम की सच्चाई तुम्हारे रग रग में बस जाए। कुरान सच्चा है या नहीं? बेशक। तुम्हारा यकीन है? बेशक। कुरान सच्चा है या नहीं? बेशक। तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? तुम्हारा नबी सच्चा है या नहीं? बेशक। तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? बेशक। सुभान अल्लाह। जब ये सारी चीजें सच्ची हैं तो मेरे अजीजों तुम झूठे कैसे हो सकते हो? तुम्हारा सब कुछ सच्चा है तो तुम झूठे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे अखलाक सबसे आला होनी चाहिए। दुनिया आज जो मुंह फेरी हुई है हमारी तरह से, वो हमारे चंद औबाशों को देखकर, वरना आज भी मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफा के अखलाक पर आ जाओ, दुनिया अपनी आंखों पर बिठा रखेगी। इलाके के इलाके इंतजार में है मोहम्मद अरबी का गुलाम आए। लोग ऐसे मिल जाएं
जो हमें मोहब्बतों से भर दें। मैं अपनों की बात नहीं कर रहा हूं, गैरों की भी बात कर रहा हूं। सच बात है। जो गैर मुस्लिम है वो भी इस इंतजार में है कि सच्चा कोई गुलाम रसूल तो आए, जिसके आते ही अल्लाह बरकतें और रहमतें आम कर दे। लेकिन आप में से उठता कौन है? कोई नहीं उठता, यहाँ हर सच कोई ये बात है। चाहता है पड़ोस के घर में हुसैन पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं। सच बात है। करबला जाने वाला हुसैन वो पड़ोसी के घर में होना चाहिए, हमारे घर में नहीं। आज कुर्बानियों की भी जब जरूरत पेश आए, उलमा भी यहाँ मौजूद हैं, सबसे मैं कहता हूं हालात ऐसे आ गए हैं कि कौम बुज़दिल होती जा रही है। इन्हें पावरफुल रखने के लिए, इन्हें अपने दीन इस्लाम पर मजबूत रखने के लिए उलमा को निडर होना बहुत जरूरी है। सच बात है। आप लोगों के सामने ये बताएं कि हम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं। दुनिया हजार प्रोपेगेंडा करे, मेरा दीन सच्चा है, मैं सर उठाकर जीऊंगा। बेशक बेशक। मेरा लिबास कोई ऐसा नहीं है कि जिसे देखकर मैं छुपाऊं। अरे वो चोर हो तो छुपाए, मैं अपने नबी के अखलाक को क्यों छुपाऊं? आपको एक बात मैं बताता हूं, दुनिया चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे ऐसे भी देखे हमने, मर्द होकर बालियां भी पहन रहे हैं, चूड़ियां भी पहन रहे हैं, हर जीन्स को फाड़ करके सतर दिखा करके भी चल रहे हैं। लोग उनको कहते हैं बड़े फैशनेबल लोग हैं। अरे नंगा घूमना अगर फैशन है तो भैंस सबसे ज्यादा फैशन करती है, वो तो कुछ भी नहीं पहनती। सच बात। नंगा अगर घूमना ही फैशन है तो जानवर ज्यादा फैशन करते हैं। लेकिन मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया अगर नंगा घूम करके भी फख्र करती है तो अपने नबी के अखलाक पर अमल करके तुम्हें कौन सी हया आती है? तुम्हें कौन सी शर्म आती है? याद रखो, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु 80 साल के करीब उम्र हो रही है, 70 के ऊपर उम्र हो गई। आपके शागिर्द कहते हैं एक मर्तबा इमाम आजम नमाज में खड़े होकर रो रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद दुआ करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? इमाम आजम अबू हनीफा की, जो सिराजुल उम्मा हैं, हजारों मसाइल का हल करके उम्मत को दिया है। कितने हजारों शागिर्द उनके, 80% उम्मत का तबका उनकी इक्तिदा करता है, करोड़ों मुसलमानों के इमाम। अल्लाह की बारगाह में रोते हुए क्या कहते हैं जानते हो? ऐ अल्लाह, तवज्जो, वो इमाम आजम की बात कर रहा हूं जिसने जहां वफात पाई 4000 खत्म कुरान किए, 4000 रात भर खड़े होकर फजर तक नमाज पढ़ते थे। वो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, ऐ अल्लाह, कयामत के दिन अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात होगी, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल कहा। इमाम आजम कहते हैं, और जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये, रोते हुए अल्लाह की बारगाह में यूं कहते हैं, ऐ अल्लाह, मेरे पास कोई अमल नहीं रह गया, लेकिन तूने फरमाया है सफेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है। अल्लाह, मेरी सफेद दाढ़ी को देखकर मुझ पर रहम फरमा। सफेद दाढ़ी को देखकर अल्लाह तू मुझ पर रहम कर दे। वो करोड़ों मुसलमानों के इमाम अपनी दाढ़ी को अल्लाह के बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि इसकी बदौलत तो तू मुझे माफ कर दे। जरा तुम भी अपने चेहरों पर हाथ फेर करके देख लो, अल्लाह की बारगाह में क्या रखने वाले हो। रब तबारक व तआला की बारगाह में बुढ़ापा आ गया, लेकिन लोगों के अंदर से जवान बनने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। बिल्कुल सच बात बता। दीन इस्लाम पर आओ मेरे अजीजों। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की दो चंद मिसालें देकर मैं खत्म कर दूंगा बात को। तवज्जो, आज आप कहते हैं मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इश्क रसूल है, अमल की बात जब आए तो कैसी होनी चाहिए? हुजूर का एक फरमान आ जाए, आंख बंद करके अमल कर लेना चाहिए, उसी को कहते हैं सच्चा आशिक रसूल। नबी पाक की बात आ गए तो आई काई नहीं करेगा, वो सबसे पहले अपने नबी के फरमान पर आंख बंद कर अमल करेगा। मोमिन की यही शान है। हजरत अनस फरमाते हैं शराब अभी हराम नहीं हुई थी, लोग शराब पीते थे, धीरे धीरे इस्लाम में शराब हराम हुई। तो अचानक एक शाम हजरत अनस कहते हैं मैं सबको शराब के प्याले भर कर दे रहा था, मदीने में आवाज आई, ऐ मोमिनो
اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی، تو جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں پیالے تھے وہیں سے انہوں نے توڑ دی، اللہ اللہ سبحان پٹک دی۔ جس کے منہ تک شراب کا پیالہ لگا تھا وہاں سے انہوں نے دور کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہ جا کر پوچھ لیں گے رسول اللہ سے صحیح میں حرام ہوئی کہ نہیں ہوئی، کون سی والی حرام ہوئی کون سی نہیں، نہیں، صحابہ کے کان میں صرف اتنی بات آئی کہ اللہ کے نبی نے کہا حرام، توڑ دیا، مٹکے توڑ دیے۔ ایسا اس دن حدیث میں ملتا ہے پورے مدینے والے جو 50 سال سے شراب جمع کر کے رکھتے تھے، سبوں نے مٹکے لا کر گھر کے باہر ایسے توڑے تھے کہ مدینے کی ہر گلی ہر نالی شراب سے بہ رہی تھی، سب نے شراب باہر پھینک دیا۔ ایسا نہیں کہ ایک گھر والے نے، ایک کے گھر میں بھی شراب کا ایک پیالہ باقی نہیں رہا۔ محبت مصطفیٰ یہ ہے، حضور کا فرمان آ گیا عمل کر لیں۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، توجہ، جمعہ کا خطبہ، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر۔ اسی اسنا میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ ابھی آ رہے تھے گھر سے، باہر سے، مسجد میں اندر نہیں پہنچے تھے، باہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے ممبر سے لوگوں سے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ لوگوں بیٹھ جاؤ۔ یہاں اتنی دیر سے لوگ کہہ رہے ہیں نا بیٹھ جاؤ، حضور کا فرمان کیا تھا سنو، اور صحابہ کیا کرتے تھے۔ میرے آقا فرما رہے تھے ممبر سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد نہیں پہنچے تھے، ابھی راستے میں تھے، حضور کی آواز آئی وہیں راستے میں بیٹھ گئے، اور پھر اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے مسجد تک آنے لگے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ، وہ تو رسول اللہ نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا بیٹھ جاؤ، یا مسجد میں جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، تم تو ابھی باہر ہو یہیں سے بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا پتہ ہے، لیکن بات رسول اللہ کی میرے کانوں میں بھی آ گئی، اگر میں کھڑا رہا اور اسی حالت میں موت ہو جاتی تو کہیں مجھے رسول اللہ کی بے وفائی میں نہ اٹھا لیا